An honest reply I want from everyone. How many of you have done the homework? You can raise your hands or in the chat box you can write. Have you done the homework, beta? Samriddhi, Harshada, Anushka is not there today. Jairaj has done. Who else has Yes, done? ma'am. Pooja has done it or not? No, ma'am. Okay, so what is the reason for not doing it? Good evening, ma'am. Good evening, Vedika. See, I had asked you to do this homework so that you can, discuss the difficulties with me if there's any issue in understanding it. If understand. Chalo, okay, so we'll discuss. How many of you have actually, I think I can see a few hands. Maybe some of you have done it. So we will discuss the answers quickly. And then if you have not done, please, you can make a note of it or you can, underline it in the lesson itself. अपने लेसन में ही आप उसको या तो अंडरलाइन कर लो या जो भी जवाब आप सुनते हो उसको लिख लो. आप सबके पास अपने पेन्स हैं, टेक्स्ट बुक एंड पेन? Yes, ma'am. Okay. So Yes, ma'am. I'll tell you the page number. Wait. This is yeah. I think page number 31, ma'am. 31. Page number 31. Right? Page number 31. You all have opened it? Yes, ma'am. Question number, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I had ma'am. given you, right? What this question number 3. Write what you think about the following thoughts and actions of Matilda. Matilda was shocked, despaired over the loss of her necklace. Who will answer it? She was shocked, despaired over the loss of her necklace. What do you think about the action or the thought of Matilda in this? ये सारे जितने भी sentences हैं, they have picked up Matilda. Okay? आप देख रहे हो सारे sentences, they are related to Matilda, not her husband, not her friend. Okay? So this is it's a kind of a character sketch of Matilda that we are doing in this form. कहने का मतलब है कि हम जब कैरेक्टर के बारे में लिखते हैं ना, किसी भी कोई भी कैरेक्टर है, जैसे आपके लेसन में उसके बारे में लिखते हैं, उसके क्या क्या ट्रेड्स हैं, उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या खराब बात है, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना वेदिका? तो हम लोग क्या, ये जो सारे देखो, फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज मटिल्डा. सो दैट मीन्स ये पूरे सारे सेंटेंसेस they are about Matilda, who is the central character of the entire story. तो हम एक एक बात करने से हम उसका कैरेक्टर स्केच कर रहे हैं. कैरेक्टर स्केच का मतलब हम उसके बारे में जानते हैं, जान रहे हैं कि वो कैसी लेडी है. अब आपने ये सोच के बताना है, मतलब आपने अपनी तरफ से बताना है कि अगर मैटिल्डा वो शॉक्ड and despaired over the loss of her necklace, जब उसका नेकलेस गुम गया था, तो she was in a shocked state because she said how, why, how can it happen. कहा था ना उसने? कहा था कि नहीं कहा था बेटा? कहा था, मैम. Yes, ma'am. कहा था ना? Yes, ma'am. तो इसका मतलब she was shocked, है क्या? तो ऐसा क्या, आपको क्या लगता है कि उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था उस टाइम पर जो उसने ये बोला, जो उसने एकदम से वो एकदम घबरा गई ये सोच के कि उसका नेकलेस गुम गया? क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ. It was natural because the necklace was very valuable. Yes, it was valuable. What else? What else would you say?
it was valuable and valuable होने से क्या होता है? सेकेंड ये सब मैं बताती हूँ. हाँ, valuable तो था, that was her first concern. ठीक है, her first concern was कि it was a valuable necklace which she had lost. But उसको एकदम से धक्का सा क्यों लगा? She could have gone to her friend to confess. वो अपनी दोस्त के पास जाके कन्फेस भी तो कर सकती थी कि मुझसे गुम गया और मैं बदल दूंगी, तुम्हारा दूसरा ले आऊंगी तुम्हारे लिए. तो व्हाट इज द रीजन? Why was she shocked and despaired? अब ये दो वर्ड्स जो हैं आप याद रखो, अंडरलाइन करो, shocked and despaired. This shows Matilda's nature. मटिल्डा की क्या नेचर थी वो पता चलता है. That she was worried about her friend's anger. उसको ये लगा कि अगर मैंने अपनी फ्रेंड को कन्फेस कर दिया, if I tell her that I have lost her necklace, she will be angry with me. Yes, उसको गुस्सा आएगा. यही सोचा था. Yes, ma'am. मैम. जब आप कोई गलती Yes, करते ma'am. हो तो जब आप बेटा कोई गलती करते हो तो कभी कभी आप नहीं बताते हो ना अपने मम्मी पापा को. सो व्हाट इज द रीजन? आप घबरा जाते हो, नहीं बताते हो, बिकॉज यू आर वरीड दैट इफ आई गो एंड कन्फेस दे विल बी एंग्री विद मी. आपका ये एक दिमाग में रहता है ना, हमसे गुस्सा होंगे या हम पे गुस्सा होंगे. Yes, ठीक है. ma'am. सो Yes, ma'am. फर्स्ट आंसर, यस, पहला आंसर इसका यही होगा. आप क्या सोचते हो ये सोचो कि मटिल्डा के दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम. मटिल्डा wrote a note to her friend as dictated by her husband. उसके हस्बैंड ने क्या बोला था? 1 week का टाइम पीरियड ले लो, by saying this that the clasp of the necklace has broken and they have given it to be fixed. तो है ना, उसको फिक्स कराने के लिए उन्होंने they have given it to the jeweler. तो तुम उसको 1 week का टाइम ले लो. Why did Matilda wrote this as dictated by her husband? जब उसके हस्बैंड ने उसको ये बोला, उसने क्यों लिखा? आपको क्या लगता है उसने क्यों लिखा? Because write the notice, give them time to search for the Yes, necklace. yes, yes, Pooja, very right, very right. Because she was trying to gain time. वो एक हफ्ते का टाइम लेना चाह रही थी to search thoroughly for the necklace. Just in case वो मिल जाता, then she would have returned the replacement. जो भी replacement था उसका, she would have returned it, isn't it? So very true. This shows that she is careless, but she is responsible in the other way. कि अगर careless है, she did not keep it intact. लेकिन जब वो गुम गया तो she thinks that she is answerable for that. उसको लगता है कि मुझसे जो गलती हुई है तो मेरी फ्रेंड मुझे क्वेश्चन कर सकती है ना? कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कुछ लोग तो डरते नहीं है, कहते हैं हाँ गुम गया तो गुम गया, कोई बात नहीं. ऐसा एटीट्यूड भी रखते हैं, बट शी डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड. Matilda and her husband decided to replace the necklace. क्यों? What can be the thought or the action going on in the mind of Matilda? बताओ. Third, बताओ बेटा. Matilda and her husband decided to replace the necklace. What was the thought? It was an husband, but very currently and solution. Matilda and her husband decided to replace the necklace. उन्होंने replace करना सोचा ना, जब 1 week तक नहीं मिला तो they decided to replace it. So what does it show about them? What does it show?
Because they want to rook a necklace of the some kind and keep their promise. Very good, Pooja. Excellent answer. Because Matilda and her husband, they were keeping their promise of returning the necklace, although it was not on time, but they had kept their promise. ठीक है, उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा था कि वो उसको टाइम से वापस कर देंगे, लेकिन वो टाइम से नहीं कर पाए, फिर भी उन्होंने किया. Matilda returned the diamond necklace to her friend. उसने डायमंड नेकलेस अपनी फ्रेंड को दिया, चाहे जैसे भी दिया. What does it show? She fulfilled her responsibility. No, Because he responsibility was तो बेटा, हाँ देखो, like a truth. because they were honest people. गुम गया था because of her carelessness. Yes, that is true. वो उसकी carelessness से गुम गया, है ना. लेकिन उसके बाद भी तो वो नहीं दे सकते, मतलब बोल देते कि हमसे गुम गया, नहीं, अब हम जब हमारे पास पैसे होंगे हम तुम्हें रिटर्न कर देंगे, कुछ भी बोल सकते थे. बट दिस शोज दैट दे वर ऑनेस्ट. बोथ ऑफ देम, हस्बैंड एंड वाइफ, वर ऑनेस्ट. ओके, पहले था दे नो हाउ टू कीप देयर प्रॉमिस, एंड नेक्स्ट वाले में दे वर ऑनेस्ट. समझ गए? आप लिख लो ना कहीं पे, ऑनेस्ट लिख लो, उसके ऊपर कीपिंग द प्रॉमिस लिख लो, तो आपको याद रहेगा. मटिल्डा डिड नॉट टेल हर फ्रेंड अबाउट द लॉस एंड रिप्लेसमेंट. ये उसने अपनी फ्रेंड को इनिशियली तो नहीं बताया था अबाउट द लॉस एंड रिप्लेसमेंट. सो व्हाट कैन बी द रीजन? ये पता नहीं नीचे पॉप अप क्या करके आ रहे हैं बार बार. बताओ बेटा. She should have told the truth. नहीं तो इससे उसके what do you think it is? What does it tell about them? Matilda did not tell her friend about the loss and replacement. She was scared that that her friend would go angry. ठीक है? But still they kept their promise. They were honest enough in returning or replacing it. But she did not tell her friend. Beginning में उसने अपनी friend को नहीं बताया इस लॉस और रिप्लेसमेंट के बारे में. इससे आपको क्या लगता है? Because she was afraid to tell the truth. She was scared of her friend. She was afraid to tell the truth, and that was the biggest mistake that they made. ना, सबसे बड़ा मिस्टेक ही वहीं पे ये हुआ था कि उसने जो है ये बात नहीं बताई. उसने ये बात नहीं बताई is the actually the biggest mistake. समझ गए? पहला मिस्टेक घुमाया, दूसरा मिस्टेक उसने अपने फ्रेंड को जाके कन्फेस नहीं किया. तो कितनी चीजें पता चलती हैं कि दे आर रेस्पॉन्सिबल, ऑल्दो शी इज केयरलेस बट दे आर रेस्पॉन्सिबल. शी इज ऑनेस्ट, शी इज लॉयल टुवर्ड्स हर फ्रेंड. ये सब कुछ पता चलता है ना अबाउट हर कैरेक्टर. ठीक है ना? Yes, सारे ma'am. वर्ड्स आप लिख लो. मटिल्डा वर्कड वेरी वेरी हार्ड टू पे द डेट. उसने बहुत मेहनत करी. What do you think about this action of hers? देखो, Matilda always wanted to have a beautiful life. उसको एक अच्छी लाइफ चाहिए थी, not just an ordinary one. हमने किया था ना, Matilda was yearning, है ना? So she had lot of aspirations, lot of dreams. बहुत सारे सपने थे, इच्छाएं थी कि मैं ये पहन, ऐसी लाइफ हो मेरी मैरिज के बाद. मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा, he's like he's an aristocrat. I have lot of money, lot of jewelry to wear, beautiful dresses to wear. उसका एक लाइफस्टाइल, एक वो कौन सा एक दिमाग में उसका एक सपने वाला घर था. बट शी गेट्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इट. उसको बिल्कुल ही एक ऑपोजिट लाइफ मिलती है. ऑल्दो इट इज डिसेंट बट नॉट, you cannot say that it was that rich. Decent life थी, खाने पीने को सब कुछ था, पहनने ओढ़ने के लिए सब कुछ था, बट उतनी रिच नहीं थी. So she worked very very hard to pay the debt. बाद में उसकी लाइफ और भी वर्स हो गई. वर्स हुई कि नहीं हुई?
Instead of progressing in Yes, life, ma'am. Oui, both of them went down. लाइफ में प्रोग्रेस तो नहीं किया ना, और नीचे चले गए वो लालच के चक्कर में. सो जो लालच है वो तो आप बोलोगे ही बोलोगे. उसके अलावा मटिल्डा वर्क वेरी वेरी हार्ड. व्हाट डज इट शो? What does it show about her? To pay the debt, she worked very, very hard. कि उसने अपना सोच लिया ना. who did अच्छा. reply to that honestly. नहीं, ऑनेस्टी तो हो गया बेटा. यू टेल मी ना. मैडम तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, देखो. मेरा आवाज बच्चों आपको आ रहा है? Yes, ma'am. मेरे Yes. को नहीं आ रहा है मैम. बेटा फिर आपके Yes, end ma'am. में कोई No, प्रॉब्लम ma'am. होगा. प्लीज चेक दैट. कहीं म्यूट पे तो नहीं हो? Please मैडम check it. मेरे को नहीं आ रहा है तुम्हारा आवाज. नहीं, मेरा आवाज नहीं आ रहा है तो आप कहीं पे उधर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके डिवाइस में बेटा. प्लीज चेक दैट. नहीं मैम. तो आप नहीं, एग्जिट नहीं. करके आप दोबारा ज्वाइन करो. ओके मैम. Yeah, do that. Matilda and her husband, Okay, sorry, okay. Matilda worked very, very hard because she was determined. She was determined. उसने एक सोच लिया था कि मैं ये काम करके रहूंगी. मैंने रिप्लेस करा है. Now देखो, there is not a single ray of doubt in her mind. What? Not a single ray of doubt का मतलब जरा सा भी एक iota of doubt नहीं था उसके दिमाग में. उससे गुम गया. वो ये भी सोच सकती थी कि हो सकता है वो नकली हो, जो उसने मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया हो. लेट मी फर्स्ट आस्क हर. उसने नहीं पूछा ना. शी ट्रस्टेड हर फ्रेंड. शी थॉट दैट इट वाज एक्चुअल डायमंड. और रियल डायमंड खरीदने में तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो उसको देने में जो इतनी मुश्किलें उसने झेली for 10 years, it shows that she is a determined character. So अब आपको एक और पॉइंट मिल गया. She has lot of determination. लिखा? Because she was determined कि मैंने ये अब मुझे ये वापस किया है तो मुझे जो भी मैंने कर्जा लिया है वो मुझे वापस चुकाना है. Okay? That shows determination. So loyalty हो गया, keeping promise हो गया, honesty is to certain level. Honesty, इतना honest तो होना चाहिए था कि इसको she did not confess it. Then she has somewhere she has this doubt also कि कहीं if I confess before my friend she'll get angry. I will lose a good friend in her. कि मेरे पास एक अच्छी फ्रेंड है वो मैं हमेशा के लिए खो दूंगी. वो एक डर था. That means she values relationships. If she is worried about her friend's anger, that means she values relationship. समझ रहे हो? VALUES. She values relationship. उसको संबंधों की का मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो उसके संबंध है, जो उसके रिश्तेदार नहीं मतलब जो भी उसके साथ संबंधित है, जो भी उसके क्लोज है, वो उनको खोना नहीं चाहती अपनी एक गलती की वजह से. ठीक है? तो हमने डिटरमिन्ड हो गया, वैल्यू रिलेशनशिप हो गया, ऑनेस्टी हो गया, कीपिंग प्रॉमिस हो गया. ओके? Then Matilda and her husband paid off the debt in 10 years. They did it. What does it show? उन्होंने जैसे भी किया, कितनी भी मुश्किलें और मुसीबतें झेली. Their principal hard work and successful help Can you them. repeat what you are saying, beta? Yes, ma'am. हाँ. Because she feeling directly to tell the truth, even truth it was left. बेटा आप ये देखो कि
paid off the debt in 10 years. 10 साल में उन्होंने वो पे किया. इसका मतलब उसकी कहीं पे नेचर में सेक्रीफाइस है ना. That means ये सेक्रीफाइस पहले नहीं था. When her husband suggested her to wear jewelry made out of flour, what did she say? No, I will have a real diamond. I mean, I will have a real jewelry. Sorry. कहा था कि नहीं कहा था? बोला था. उसके हस्बैंड ने तो सजेस्ट किया था ना कि फ्लावर ज्वेलरी पहन लो. उसने मना कर दिया था. She went for the real jewelry, although it was not, she could not afford to buy, and she borrowed it therefore. But now she and her husband, they gave up all the comforts of their life, they, है ना, to pay off their debt. And this they did not just for 1 day or 2 days or a few days. It was for full 10 years. पूरे 10 साल उन्होंने मेहनत करके ये काम किया. इससे पता चलता है that she has evolved. I cannot say they have evolved. Husband was supportive, loving, caring. वो बेचारा तो वैसे ही अच्छा ठीक था. But इसका nature sacrifice करने वाला नहीं था. But now she has evolved. Towards the end of the story, Matilda as a character has evolved. समझ गए? She has become more mature now. Maturity आ गई ना. She has gained maturity. भाई पहले अगर ये maturity शुरू में होती. मैडम तुम्हारा आवाज नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है. देखो बेटा मुझे नहीं समझ में आ रहा. प्रिया, पूजा, हर्षिता, अनुष्का, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अपूर्वा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर आवाज आ रही है? फिर आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है बच्चे. आप या तो किसी और डिवाइस से जुड़ो. टेक अनदर डिवाइस, किसी और का मोबाइल ले लो. इफ यू आर फेसिंग दिस. ओके मैम. या आपने उसका चेक करो कि आपने उसका वॉल्यूम लो तो नहीं कर रखा है. ओके. सो यू अंडरस्टैंड बेटा, अगर हम शुरू में कोई गलती करते हैं और बाद में हम सुधर जाते हैं तो हम इवॉल्व हो गए ना एज अ कैरेक्टर. हमने अच्छी बातें लाइफ में सीखी. अब आप ये देखो, शुरू में उसने अपनी फ्रेंड्स को अपने से दूर कर दिया था. Why? Because she was suffering from inferiority complex. उसको ये लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है जितना मेरे फ्रेंड्स के पास है. So she did not keep any relationship with them. Yes or no? Yes, ma'am. You know that ना. अब आपको पता है ये बात. ठीक है. लेकिन बाद में ये अपनी फ्रेंड को रियल डायमंड खरीद के देती है. किसी के दिमाग में ये डाउट भी आ सकता है कि हो सकता है जो मैंने बोरो किया था वो रियल ना हो. बट शी ट्रस्ट्स हर फ्रेंड. वो अपनी फ्रेंड को ट्रस्ट करती है. दूसरा, वो अपनी फ्रेंड से कन्फेस नहीं करती है. शी डजंट गो एंड टेल दी ट्रुथ बिकॉज शी डजंट वांट टू लूज अ गुड फ्रेंड इन हर. वो एक उसकी मतलब वो शी इज अ गुड फ्रेंड और वो उस अच्छी फ्रेंड को खोना नहीं चाहती. दैट मीन्स शी हैज नाउ लर्न टू वैल्यू रिलेशनशिप. ठीक है. और लास्ट में बाय चांस व्हेन शी मीट्स हर फ्रेंड, दिस इज H, the last part. Matilda told her friend about the lost necklace. She has now become honest. She was not honest earlier. मैम मैं बताऊं आंसर? हाँ बेटा, पहले मेरी बात सुन लो पूरा, फिर आप बताना. आपको मैं चीजें कंट्रास्ट दिखा रही हूँ. पहले वो सेक्रीफाइस नहीं करती थी. उसने जो उसके हस्बैंड के पैसे थे उसके हंटिंग गन के, she takes all that money and buys a dress for herself. That means she is not ready to sacrifice. But बाद में she spends 10 years in paying off the debt. And for that she gives away all the comforts, all the thoda about whatever comfort she had, yeah, her house, whatever, even if it was shabby, it was a house. She had a proper home. वो उसको भी छोड़कर एक स्टोर में शिफ्ट हो जाते हैं. So she has sacrificed her life for 10 years and then she values her the relationship with her friend. इसीलिए उसको ट्रुथ नहीं बताती. She doesn't confess before her.
because she doesn't want to lose her friend. And last में she has become honest also, because by chance when she meets her friend, she tells her, Matilda tells her that her condition, the present condition, was just because she had lost the necklace which she had once borrowed from her. मैं इतना धीरे धीरे आपको बताती हूँ कि आप कहीं पे कुछ लिखना चाहते हो अपने टेक्स्ट बुक में, कोई नोट बनाना चाहते हो तो बना सको. समझ गए? तो उसका हस्बैंड तो शुरू में सेक्रीफाइस करता है, बाद में भी सेक्रीफाइस करता है, तो हस्बैंड इवॉल्व नहीं हुआ. उसकी जो फ्रेंड थी वो पहले भी जेनरस थी और बाद में भी जेनरस है ना, तो वो भी इवॉल्व नहीं हुई. सो हु हैज इवॉल्व? कौन इवॉल्व कर गया बताओ? मेटिल्डा इवॉल्व करी. हाँ, जो वो पहले थी, इनिशियली थी, within those 10 years of hardship, she learned so many things in her life. वो 10 साल की मेहनत ने उसको कितनी चीजें सिखा दी, उसको सुधार दिया. वो चीजें जो उसके अंदर क्वालिटीज नहीं थी, वो बाद में towards the end of the story हो जाती हैं. You might get this kind of a question. कि Matilda, do you agree with this that she has evolved? So you have 3 points. एक पॉइंट है honesty, दूसरा पॉइंट है valuing relationship, and थर्ड क्या है? that she has sacrificed. Initially she was not ready to sacrifice, but now for 10 years उसने इतनी मेहनत करी दिन रात, और उसने अपनी सारी इच्छाएं खत्म कर दी, अपनी सारी लाइफ के सपने खत्म कर दिए. ठीक है? तो वो सेक्रीफाइस करना सीख गई. तो शी हैज इवॉल्व्ड एज अ कैरेक्टर. आई डोंट नो अगर आपके दिमाग में ये चीज आई होगी कि नहीं आई होगी. अपूर्वा इज शोइंग मी हैंड. तो ठीक है. So these were some of the important statements which we need to discuss. ये हो गया. Now ये जो बात के हैं, इस टाइप के फॉर्म पेयर्स और ये सब तो नहीं आता है बेटा. एक सेकेंड. अब आपको ग्रामर पार्ट में मैं लेके जा रही हूँ, which is very important. ठीक है, ध्यान से सुनो. You must have studied it in class. In fact मैंने क्लास 8th में आपको पढ़ाया है, and I remember I have taught you verbs. मैंने आपको वर्ब्स कराए थे, अपूर्वा, पूजा, जब मैंने आपको पढ़ाए थे. ठीक है. अब ये सिंपल बेस, ये जो पहली लाइन है ना बेटा, जहां मैं ऐसे कर रही हूँ कर्सर को, दिख रहा है? These are the verbs and they are in their base form. बेस का मतलब होता है जैसे हम हिंदी में कहते हैं मूल शब्द. ठीक है, हम मूल शब्द की बात करते हैं ना, तो ये मूल शब्द है. बेस फॉर्म को कहते हैं मूल शब्द. अब जैसे वर्ड है गिव, ड्रॉ, ईट, शो, टेक, से, कम, गो. अब मुझे याद है मैंने आपको पूरी लिस्ट दी थी वर्ब फॉर्म्स की. अगर आपके पास वो मेरे नोट्स हैं तो आप वो निकाल सकते हो. देयर इज मतलब पूरी एक लिस्ट थी ऑफ वर्ब्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है. अब ये एस फॉर्म ऑफ वर्ब कब आता है मुझे बताओ? गिव का गिव्स बन जाता है, ड्रॉ का ड्रॉज हो जाता है, ईट का ईट्स हो जाता है, शो का शोज, टेक का टेक्स, से का सेज, कम का कम्स, एंड गो का गोस. यही नहीं, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो जिसमें हम एस लगा देते हैं. कब लगता है एस? बताओ. क्या मैम? ये एस कब लगता है? एस कब लगता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में? तो समझ क्यों नहीं आप? मेरा आवाज तो फुल है बेटा, मैं और तेज कर दिया अपना आवाज. चलो, हम बेस फॉर्म में एस कब लगाते हैं? एस लगाते हैं ना जब हम थर्ड इसमें पर्सन में, तीसरे थर्ड पर्सन में, आई एंड यू नहीं,
हम द थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ही, शी, दे। याद आ गया आपको? मैंने ऐसे करके सिखाया था, ही, शी एंड दे, 3 डायरेक्शन। Yes, ma'am. है ना? या इट। यस मैम। अगर दे के साथ, हाँ, दे तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो हम उसके साथ तो एस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाते। लेकिन जब हम ये थर्ड इसमें पर्सन में जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं, जब हम एक चीज की बात करते हैं या एक इंसान की बात करते हैं, तो हम वर्ब के अंदर एस लगाते हैं। जैसे शी ईट्स हर फूड। मैंने ये नहीं बोला शी ईट हर फूड, क्या बोला मैंने? ईट्स, शी ईट्स, खाना खाती है, अपना खाना खाती है, शी ईट्स हर फूड, बोला मैंने। अब शी जो है थर्ड पर्सन है कि नहीं है? शी है ना? मैं किसी और की, मैं अपनी और आपकी बात नहीं कर रही, मैं किसी और की बात कर रही हूँ। ऐसे ये जो है अपना थम से याद रखो, जब हम किसी और की बात करते हैं, ठीक है, सो हम उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। और जब वो थर्ड पर्सन एक अकेला होता है, सिंगुलर होता है, तो हम उसके साथ जो आया हुआ वर्ब होता है ना बेटा, उसमें हम क्या लगाते हैं? एस। ठीक है? ही रीड्स द बुक। अब आप मुझे यहाँ पर शी और ही और इट लगाकर ये सारे सेंटेंस बनाओ, एस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सेंटेंस बनाओ जल्दी से, बनाओ। चलो गिव्स के साथ बनाओ, फर्स्ट वाला है हमारा गिव्स, गिव्स के साथ बनाओ। Yes. बोलो, थर्ड पर्सन को लेके बोलो, बोलो बेटा, आई नो यू नो इट। She gives me a book. यस, शी गिव्स मी अ बुक। और इसको और थोड़ा करेक्ट करना है, शी गिव्स मी द बुक, है ना? अगर हम द लगा देंगे तो हम स्पेसिफिक हो गए, हम और किसी किताब की बात नहीं कर रहे, हम इसी किताब की बात कर रहे हैं, तो हम अ की जगह द लगा सकते हैं व्हेन वी आर बीइंग स्पेसिफिक। जब हम किसी भी एक चीज की बात करते हैं ना, जिसका कि मेंशन हम पहले कर चुके हैं, सो शी गिव्स मी अ बुक और शी गिव्स मी द बुक। ठीक है, वेरी गुड पूजा। आई थिंक और बच्चे भी अगर इसमें पार्टिसिपेट, हाँ बेटा, प्रीति, सॉरी, ओके, ड्रॉस। She Draws. draw a picture. शी ड्रॉ नहीं, शी ड्रॉज, शी A picture. ड्रॉज, यस, वो पिक्चर को ड्रॉ करे, शी, थर्ड पर्सन। ठीक है, प्लीज आप लोग सब लोग अपना, आई कांट सी योर फेस, आई कांट सी योर हैंड्स, बट मैं आपको जेस्चर्स इसलिए बताती हूँ सो दैट आपको दिमाग में वो चीज रहे। ओके, ईट्स, ईट्स, ईट्स हो गया, हमने कर लिया। शोज, He shows me his new book. his new book, और he shows us the picture, है ना, कि हमें वो पिक्चर दिखा रहा है। Why the videos? The videos, very She good, shows ठीक है। takes, the movie. takes, he shows us a movie, yes, takes, She takes a water bottle. from somebody, किसी का भी नाम लगा सकते हो, है ना, या she takes water from the tap, she takes water from, उसने पानी टैप में से पानी लिया, He है ना? take bus to school.
Yes, he takes us to. Very good बेटा, बहुत अच्छे अच्छे sentences बना रहे हैं. I'm very impressed. Says. He say good morning. He says good morning to us. है ना? Says. He say हम एक की बात कर रहे हैं. जब हमारा S फॉर्म आएगा, ठीक है? ऐसे ही comes और goes का हो जाएगा. आप बहुत अच्छे सेंटेंस बना रहे हो. Let's go to the past tense now. Now बेटा, जब हम past tense बनाते हैं ना, सिंपल पास्ट है. दिस इज सिंपल पास्ट टेंस. तो गिव का गेव बन जाता है ना. yes ma'am. ड्रॉ का ड्रू बन जाता है. शो का शोव बन गया. अब गेव, ड्रू, एट एंड शो, इनमें क्या फर्क है? और ये फर्क मैंने आपको कल बताया भी था क्लास में. टेल मी द डिफरेंस बिटवीन गेव, drew, ate, show. मैम बताओ थर्ड बच्चे. वर्ब अलग है इसलिए. थर्ड वर्ब अलग है. यस, अलग है. और अलग में यहाँ पे ईडी का रूल फॉलो हो रहा है क्या? नो मैम. हमारा गिविड नहीं है, हमारा ड्रू ड्रूइड नहीं है, हमारा ईट ईटेड नहीं है. एट हो गया वो तो, है ना? हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन शो जो है, शो बन गया. शो क्या बन गया? शो. क्लोथ. ठीक है. तो और यहाँ पे टेक टुक बन गया, से सेड बन गया, के कम केम बन गया, गो वेंट बन गया. तो जब बेटा ईडी का रूल फॉलो नहीं होता ना, सॉरी एक मिनट देना बेटा. यस, जब ईडी का रूल फॉलो नहीं होता तो हम उसको इररेगुलर वर्ब बोलते हैं. और जब ईडी का रूल फॉलो होता है ना पास्ट टेंस में, तो हम उसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं. तो हमारे इन सब में कौन सा रेगुलर वर्ब हुआ? गिव. शोड. ये हुआ ना रेगुलर वर्ब बच्चे. शोड. ईट. ईट कैसे हो गया? ईट तो नहीं हुआ, वो तो इरेगुलर हुआ क्योंकि हमारा ईट का एट बन गया. उसने ईडी का रूल फॉलो नहीं किया. ईडी का रूल का मतलब है, ये मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, सॉरी एक सेकेंड, ताकि आपको समझ आए मैं क्या कह रही हूँ. लेट्स मेक इट रेड. ओके, नाउ आप ये देखो, जो ये ईडी मैंने रेड से हाईलाइट किया है, इज इट देयर इन एनी अदर वर्ब? नो. इट्स नॉट देयर, है ना. तो ये जब ईडी लग जाता है तो हम उसको रेगुलर फॉर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेगुलर फॉर्म. रेगुलर फॉर्म. जस्ट लाइक, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बेटा, कि कुछ स्कूल्स में, आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं, एक्सपीरियंस किया है, कुछ स्कूल्स में फ्राइडे को यूनिफॉर्म डिफरेंट पहनाई जाती है. हाउस यूनिफॉर्म, ठीक है, ग्रीन, रेड, ब्लू, जो भी कलर आपका होता है, येलो, 4 हाउसेस का जो भी कलर होता है, बच्चे अलग अलग उन्हीं कपड़ों, उन्हीं यूनिफॉर्म्स को, कलर के यूनिफॉर्म को पहन के आते हैं. लेकिन बाकी 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, वो लोग अपना सिंपल जो यूनिफॉर्म उनकी स्कूल की रेगुलर यूनिफॉर्म है, अब देखो मेरे मुंह से निकल रहा है ना, रेगुलर यूनिफॉर्म है, वो पहनते हैं. ना, इट्स नॉट दैट दे आर बीइंग इरेगुलर. फ्राइडे को इरेगुलर नहीं हो रहे, बट दे आर वेयरिंग समथिंग डिफरेंट. फ्राइडे को उन्होंने कलर्ड पहना और बाकी 4 दिन उन्होंने वो वाली यूनिफॉर्म पहनी जो एक जैसी है. फ्राइडे को उन्होंने सबने एक जैसा तो नहीं पहना. अब 10 बच्चे ग्रीन में आए तो 10 बच्चे ब्लू में आए, तो 10 बच्चे रेड में आए, तो 10 बच्चे ग्रीन और किसी कलर में आए, मतलब जो भी उनके कलर्स हैं. समझ गए? उनको हम हाउस कलर्स बोलते हैं. आपके स्कूल में ऐसे हाउसेस हैं बने हुए क्या? नहीं. नो मैम. नहीं, कोई बात नहीं. नो मैम. कुछ स्कूल्स में इस तरह का सिस्टम फॉलो किया जाता है. ठीक है बेटा? ओके. Yes.
तो हम उसको बोलेंगे इर्रेगुलर। हमने रख दिया इर्रेगुलर, नाम रख दिया ताकि आपको याद हो जाए। और बाकी 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, 4 डेज जो बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं रोज, और सारे बच्चे, तो वो हो गया रेगुलर। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल सो दैट आप समझो कि जब ईडी फॉलो होता है, ईडी फॉलो होता है, तो वो रेगुलर वर्ब होता है बेटा, और जब वो ईडी रूल फॉलो नहीं करता तो वो इरेगुलर वर्ब होता है। अब इधर देखो, हम ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तो कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन के लिए होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूटी के लिए, सो वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट। इट्स इजी, गिव का गिविंग हो गया, ड्राइंग, ईटिंग, शोइंग, टेकिंग, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। लेकिन जब हम पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, इनको ना पार्टिसिपल्स बोलते हैं। अब आपको एक चीज और बताती हूँ जो कि मैं यहीं पे थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जो हमारे वर्ब्स भी होते हैं ना, आप लोगों ने अभी, आई डोंट नो आपको पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाया है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट करके ऐसे होते हैं वर्ब्स, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, दो जो फाइनाइट होते हैं उनको फाइनाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो समय के साथ कितने लोगों की हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से वो बदलता है। जो नॉन फाइनाइट होते हैं वो नहीं बदलते हैं, ठीक है। अब भूल जाओ, अगर आपको नहीं पढ़ाया ये स्कूल में, हम किसी और बात। तो ये दिस इज वन टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल में भी 2 प्रकार के पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट है एंड पास्ट है। प्रेजेंट तो आपको समझ में आ रहा है, कोई भी एक्शन चल रहा है, हो रहा है प्रेजेंट में अभी, हम उसमें आईएनजी लगा देते हैं, विच इज सिंपल। बट आप देखो यहाँ पे गिव का गेव बना और फिर गिवन आ गया। क्या आ गया? गिवन। अब मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। गिव वॉज योर, एक सेकेंड, गिव वॉज योर बेस वर्ड, इट वॉज अ बेस वर्ड। और सिंपल पास्ट में वो क्या बन गया बच्चे? गिव बन गया, ठीक है। और जब हमने पास्ट पार्टिसिपल की बात करी तो वो क्या बन गया? गिवन। गिवन। तो क्या आप देख रहे हो कहीं पे ईडी रूल फॉलो हो रहा है इनमें? नो मैम। कौन से वर्ब हो गई है? कौन से वर्ब हो गई? नो, इनरेगुलर। नो मैम। तो ये क्या रेगुलर है या इरेगुलर है? इनरेगुलर। इरेगुलर है। Irregular. इरेगुलर है। समझो ये फ्राइडे को ये वाले कपड़े पहन के आए हैं स्कूल, समझ गए? तो ये इरेगुलर है, समझ गए? और अगर इसी में ईडी लग जाए बच्चे तो फिर हम उसको रेगुलर कहते हैं, ओके? यस। ओके मैम। हाँ, ये मैंने आपको, ये जितना यहाँ पर सब कुछ लिखा है ना आपके यहाँ पे नीचे, उसको मैंने आपको इसी चार्ट में समझा दिया है। सो नो नीड टू रीड ऑल दिस, नीचे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको यहीं पर ही समझा दिया। हाँ बेटा बोलो। मैम प्लेड, यह शब्द रेगुलर है कि इनरेगुलर है? रेगुलर। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले, प्लेड, ईडी लग गया, एंड प्लेड। वो सिंपल पास्ट में एंड पास्ट पार्टिसिपल में दोनों में ईडी लग रहा है, यस मैम। ठीक है। और तो हम उसको इस तरह, पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है ना बेटा, जो वर्ब होता है ना, वो वर्ब नहीं रहता एक्चुअली में, वो एक एडजेक्टिव का फॉर्म ले लेता है। जैसे मैं कहती हूँ कि दिस इज अ ब्रोकन विंडो, दिस इज अ ब्रोकन विंडो। अब ब्रोकन का बेस वर्ड क्या है? ब्रेक, टूटा, BREAK, ब्रेक मतलब टूटना, समझ रहे हो, है ना? लेकिन मैंने उसका ब्रेक का पास्ट पार्टिसिपल ब्रेकेट तो नहीं होता, यस मैम। ब्रेकेट तो नहीं होता, ब्रोकन होता है कि नहीं होता है ना? तो हाँ जी, तो ये सिंपल पास्ट उसका ब्रोक एंड पास्ट पार्टिसिपल ब्रोकन। अब दोनों में ईडी नहीं लग रहा, तो ये बन गया हमारा इरेगुलर वर्ब। और इस प्रकार के जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं ना बेटा, वो एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं। किसको हिंदी में क्या बोलते हो एडजेक्टिव को? विशेषण, जो नाउन के बारे में बताता है ना। जब मैंने बोला दिस इज अ ब्रोकन विंडो, तो विंडो क्या है मेरी? नाउन,
खिड़की Yes. नाउन हुआ ना, किसी चीज Yes. का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तो विंडो। और कैसी विंडो, एडजेक्टिव तो नाउन के बारे में बताता है। Yes. कैसी विंडो, टूटी हुई Broken. विंडो। कैसी विंडो, टूटी हुई। टूटी हुई विंडो। तो टूटी हुई के लिए मैंने क्या यूज किया, ब्रोकन। Broken. अब ब्रोकेट तो कोई वर्ड ही नहीं होता बेटा, Broken. तो इट इज एन इररेगुलर वर्ब। और पास्ट पार्टिसिपल में ये याद रखो कि ये एक एडजेक्टिव का रूप धारण कर लेता है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी टेक्निकल, और इसको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये इतना ऐसी चीज है ये। ठीक है, तो अपने इस चार्ट के ऊपर आप ये लिख लो कि ये सारे इररेगुलर वर्ब्स हैं। हाँ, showed is not an irregular word because it has got ed here. Shown is irregular. Shown is irregular क्योंकि यहाँ पे wn आ गया, बट यहाँ पे showed में it is regular। ठीक है, प्लीज लिख लो अपने उस पे। इररेगुलर में डबल आर आएगा, IRRE, इररेगुलर। ठीक है, अब हम आगे चलें बेटा, समझ गए आप लोग? Yes. 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 आई एम हैप्पी कि आप समझो, अगर कोई दिक्कत आएगी तो प्लीज Yes, ma'am. अब ये एक बहुत, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोम, कंपैरिजन। बेटा कंपैरिजन का क्या मतलब होता है? Mahesh. Mahesh. हाँ, जब हम किसी की तुलना किसी चीज से करते हैं। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको, आई वाज टीचिंग यू पोएटिक डिवाइसेस, जब मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस था, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा आप? ये नर्सिंग के नाम से कौन बच्चा है? बच्चे आपका नाम क्या है? नर्सिंग के नाम से आप जुड़े हो? रुपेश। हाँ जी, रुपेश। रूपेश। रूपेश, हाँ, ओके हाँ। बेटा। रूपेश, बात सुनो ध्यान से। हम जब कंपैरिजन करते हैं, जब हम तुलना करते हैं, हिंदी में कंपैरिजन को क्या मतलब हुआ? तुलना करना। अब जैसे तुलना। आपके मम्मी पापा अगर ये बोलते हैं कि भूपेश आप पढ़ते नहीं हो अपने भाई की तरह, ठीक है, मेरे को या आप पढ़ते नहीं हो अपनी बहन की तरह, तो आपके मुंह से क्या निकला? आप तुलना मत करो मेरी भाई से या ओहो। बहन से, बोलते हैं ना? Okay. ठीक है, हाँ। तुलना का मतलब होता है बच्चे कि जब हम दो चीजों की या दो वस्तुओं की या दो लोगों की, किन्हीं दो लोगों की हम कंपैरिजन करते हैं, हम तुलना करते हैं। अब ये सबसे पहले तो इसका पोएट का कोई नाम नहीं है, इट्स एनोनिमस लिखा है नीचे। एनोनिमस इज नॉट द नेम ऑफ द पोएट। एनोनिमस का मतलब है कि इस कवि का के हमें नहीं मालूम कौन कवि है, किसने लिखा है। किसी ने किसी ABCD XYZ ने ये लिखा है, कविता लिखी है, ठीक है, उसका नाम नहीं हमें पता। सबसे पहले तो एनोनिमस का मतलब जानो, फिर कंपैरिजन का मतलब तुलना। ना जब हम तुलना करते हैं ना बेटा, हम उसकी तुलना जो है, हम कभी कभी तो तुलना हम करते हैं चीजों की समानता बताने में, मतलब कि वो दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, कभी तो हम समानता बताते हैं ना, ही इज एज स्लो एज अ स्नेल। अब स्नेल क्या होता है? वो स्नेल अपने शेल में रहता है, वो बहुत धीरे धीरे चलता है सड़क के ऊपर। और कोई इंसान अगर बहुत धीरे धीरे काम करता है या धीरे धीरे चलता है, तो हम उसकी तुलना किससे करते हैं? स्नेल। स्नेल से करते हैं कि ये तो स्नेल की तरह चलता है। ठीक है, तो वहां हमने तुलना करी, तो हमने सिमिलैरिटी ढूंढी। कभी कभी हम कंट्रास्ट भी ढूंढते हैं, कंट्रास्ट भी लेके, मतलब डिफरेंस इन आइडिया, डिफरेंस इन ओपिनियन के लिए भी हम इस तरह की तुलनाएं करते हैं। लेकिन मतलब, और इस तरह की तुलना जब हम करते हैं, आप देखो, हम जब पोएटिक डिवाइस करते हैं किसी भी कवि पोम की, सो आई कीप टेलिंग यू कि बेटा सिमिली एंड मेटाफर, सिमिली एंड मेटाफर मैं बताती हूँ कि नहीं बताती? सिमिली में लाइक एंड एज यूज होता है, मेटाफर में भी हम तुलना करते हैं, पर हम लाइक एंड एज नहीं यूज करते। ठीक है, अब यहां पर जब वो एज लगा रहा है कि स्लो एज अ स्नेल, बिग एज अ डायनासोर, स्मॉल एज अ नेल, fierce as a tiger, gentle as a lamb,
Or as a हाँ, sour as a lemon, lemon. sweet as jam, dry as a desert, wet as the sea. अब आप ये देख रहे हो कि as लग रहा है, फिर यहाँ पे भी as लग रहा है, यहाँ पे भी as लग रहा है, यहाँ पे भी as लग रहा है, यहाँ पे भी as लग रहा है. तो ये क्या हो सकता है अगर as और like आ जाए तो? अब मैं इसको like बना देती हूँ. I change it. I make it, he is big like a dinosaur, he is small like a nail, fierce as a tiger. अगर मैं as की जगह like लगा दूं, आप समझ रहे हो मेरे बच्चे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Yes. Yes. आप पूरी कविता Yes. में पूरी Yes, ma'am. ओ, मैं इसको चलो ये कोई नहीं, येलो पे येलो दिख नहीं रहा है बाई चांस. अगर मैं इसको इफ आई रिप्लेस इट बाय द वर्ड लाइक, अगर मैं लाइक लगा देती हूँ, एज की जगह लाइक लगा देती हूँ, तो क्या कविता की का मतलब चेंज हो जाएगा? No. इस का विल इट मेक एनी डिफरेंस? No. नहीं. No, ma'am. Oh. तो जब बेटा लाइक एंड एज यूज होता है ना, तो इसको हम सिमिली बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Simile. सिमिली. और सिमिली जो होता है, इट इज अ काइंड ऑफ पोएटिक डिवाइस. इट इज अ काइंड ऑफ पोएटिक डिवाइस. जो कि हाँ, अब आप पूरे देखो, पूरी इसमें एक मिनट, अब कौन पढ़ के सुनाएगा मुझे? जल्दी से पढ़ो पूरा. हाँ पढ़ो. मैम मैं अभी ये समृद्धि आप पढ़ो. मैम समृद्धि के बाद में अच्छा बेटा, पहले हम एक जना तो पढ़ ले इसको. पढ़ो बेटा. fast as a fish, slow as a snail, big as a small as a nail, fierce as a tiger, Gentle as a lamb, as a lamb, sour No, as what? a lemon, sour, sour, sweet as sour jam, as a lemon, sweet the as jam. desert, wet is the sea, square as a house, round as a Pea, mutter, pea. cool as a cliff, Wave, warm as toast, toast, noisy as a road drill, noisy as a road drill, drill. sweet as a ghost, Yes. बेटा एक सेकेंड समृद्धि, drill, एक सेकेंड रुक जाओ. ये इस वर्ड को सब लोग बड़ा गलत प्रोनाउंस करते हैं. इट इज नेवर क्वाइट, इट इज क्वाइट, क्योंकि ई पहले आया है और टी बाद में आया है. जब हम टी को पहले लेते हैं और ई को बाद में लेते हैं ना, तब हम क्वाइट लगाते हैं, बोलते हैं दिस इज क्वाइट. ओके. यस. Okay, ma'am. Quiet as a ghost, strong as an ox, weak as in ox, weak as as kitten, and kitten, as a rock, rock, soft soft as a mitten. हम जब सर्दियों में ग्लव्स पहनते हो ना, कभी कभी जब बहुत ठंड पड़, अच्छा वहां पे तो क्या ठंड पड़ती, जब सर्दियां होती है तो आपने देखा कुछ लोग वो ग्लव्स पहनते हैं, है ना? उनमें उंगलियां बनी हुई होती है ना, उंगलियां बनी हुई होती है ना, जिसमें उंगली नहीं बनी होती है या कम उस पे लेवल पे बनी होती है या बिल्कुल नहीं बनी होती है, सिर्फ ऐसे ही कवर होता है, उसको मिटन बोलते हैं. बच्चे यूजुअली छोटे बच्चों को पहनाया जाता है. ओके. ताकि वो अपने बाल ना खींच ले या इधर उधर चोट ना लगा ले. डार्क एज अ टनल. मैडम हाँ बेटा बोलो. तुम बोलो ना, इनको एक जन को पढ़ो, सब जन पढ़ रहे. किसका सुन. अच्छा ठीक है, एक मिनट, पहले इसको कंप्लीट करने दो. डार्क एज अ टनल, लाइट एज द मून, नाइट टाइम मिडनाइट, डे टाइम नून. हाँ,
प्रीति आप पढ़ो आगे का। कहाँ से मैम? टॉल एज अ जायंट, यहाँ से। Tall as a great, short as a जायंट tall as a giant, short as a leaf. एल्फ बेटा, एल्फ बोना नहीं होता, बोना। हाँ, Yes आपने ma'am. बोने देखे? आप लोगों ने बोने देखे Yes ma'am. है ना, जो बिल्कुल छोटे होते, बड़े Yes, ma'am. साइज के होते हैं। पर ये एल्फ अलग टाइप के होते हैं, इनके कान भी ऐसे होते हैं, पॉइंटेड। ओके, और इनके अंदर कुछ मैजिकल पावर्स होती। ठीक है, चल। हाँ, Called पढ़ो। called क्रूकेड, as crooked as a क्रूकेड एज अ माउंटेन पाथ। माउंटेन का जो रास्ता होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, पगडंडी, गोल गोल. Yes, ma'am. कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा भी होता है ना। सो क्रूकेड एज अ माउंटेन पाथ, स्ट्रेट एज अ शेल्फ। जो शेल्फ होती है जिसके ऊपर आप सामान रखते हो, वो ऐसे तो नहीं होता, वो क्या होता है, मैम सीधा होता है। सीधा. हाँ, शेल्फ। Curve is full of opposites. So So think of ma'am. yourself. हाँ जी बेटा, बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो आप? तुम एक से पढ़ के लो ना, सब जन पढ़ रहे, किसका सुनो, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। अच्छा बेटा, मैं लास्ट में पढ़ देती हूँ, अभी टाइम हो गया आपका। मैं Okay, ma'am. fast as a spaceship, slow as a snail, big as a dinosaur, small as a nail, fierce as a tiger, gentle as a lamb, sour as a lemon, sweet as jam, dry as the desert, wet as the sea, square as a house, round as a pea, cool as a cave, warm as toast, noisy as a road drill, quiet as a ghost, strong as an ox, weak as kitten, hard as rock, soft as a mitten, dark as a tunnel, light as the moon, nighttime midnight, daytime noon, tall as a giant, short as an elf, crooked as a mountain path, straight as a shelf. The world is full of opposites, so think of some yourself. तो इतने सारे उसने ऑपोजिट्स दे दिए आपको, और वो कह रहा है कि इसके अंदर अब और ढूंढो अपनी तरफ से ऑपोजिट्स। इसके अंदर नहीं, मतलब आप अपने और ऑपोजिट्स ढूंढ के बताओ, क्योंकि जो यूनिवर्स है, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑपोजिट्स, कंट्रास्ट। अब हम यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको, इस पोम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया बच्चे? यस तो अब उसने जो लास्ट में बोला है ना, ऑफ सम ऑपोजिट योरसेल्फ, अब तुम लोग इन ऑपोजिट्स को छोड़ के हर एक कोई एक ऑपोजिट सोच के आएगा। Yes, ma'am. ठीक है, और एक ऑपोजिट मैं आपको सिखा चुकी हूँ, रेगुलर टीचर। यस, ठीक है, स्टॉप इट हियर। Bye, ma'am. ठीक है, बाय मैम। बेटा, बाय बाय गुड नाइट। बाय 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 बाय।